Good morning, dear students. Myself is Deepti from Deep Scrollbag, and in today's lecture, we are going to continue the reading of History chapter 14. And in today's lecture, we are going to read about the difference between with the Muslim League we have read, and in which we have come to know that the what was the main reason behind the division of India. And in now we today we are going to read about the Second World War, which was an important event not only in Indian history but also in the world history. So, Second World War, on 3rd September 1939, witnessed the Second World War, the World War between England, France, and Russia one side, and Germany and Italy on the other side. British wanted Indian to participate in the war, but the Congress opposed it since they are not consult, consulted. But they placed their demand that immediately after the war, the transfer of power from British should be take place, and in return, the Congress will be ready to cooperate in the war. The British did not respond to this demand for complete independence. Hence, the Congress minister resigned from the provinces. This act of the Congress made the Muslim League to strengthen their position and offer support to the British government. So, यहीं पे यहाँ पर पता चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि हम इंडियंस जो हैं, इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटिश की तरफ से वॉर लड़े। बट इंडियन का जो पॉलिटिशियंस थे वो कहते हम क्यों लड़ें, ये हमारी लड़ाई नहीं है तो हम नहीं लड़ेंगे। और इसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि अगर हम इनसे ये कहा जाए कि भी हाँ ठीक ओके, हम आपकी वॉर को में पार्टिसिपेट करने में आपकी हेल्प करेंगे, हम लोग हमारे सोल्जर्स जाएंगे, बट इन रिटर्न आप हमें पावर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको दे देंगे। तो बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण गुस्से होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी नए लीडर्स थे उन्होंने अपने प्रोविंसेस में जितने भी प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट थी उनमें से रिजिग्नेशन दे दिया। ऐसे में मुस्लिम लीग जो थी, जो इस एक ताक में बैठी हुई थी कि भी किसी कोई ऐसा बहाना मिले जिससे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्लोज हो सके और लोगों के भी क्लोज हो सके, तो उसको ऐसे में मौका मिल गया और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कि क्लोज होने की कोशिश में लग गई और उसने काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही। नेक्स्ट इज द क्रिप्स मिशन इन 1942। In March 1942, Japan entered the World War, supporting Germany and reached India and was very close to Burma. In this situation, the British need the help of India. Therefore, they sent a mission to India under the head of Sir Stafford Crisp in order to convince Indian to support the British in war. The mission failed because the British did not consent the demand complete the independence and transfer of the power. क्रिस्प मिशन कुछ भी नहीं था, इसको इंडिया में लेके आए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस कारण इसको भेजा था कि ताकि वो हमें इंडियन पॉलिटिशियंस को समझा सके कि भी इंडियंस वो कि भी इंडियन आर्मी को वो यूज़ कर सके, इंडियन सोल्जर्स को यूज़ कर सके वर्ल्ड वॉर में। बट इंडियन पॉलिटिशियन माने नहीं, और ये जो मिशन था ये फेलवर हो गया। उसके बाद में आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट important moment of Indian history. The Quit India movement, the Congress decided to pursue the British to accept their demand for independence. Hence, All India Congress Committee met on 8 August 1942 at Bombay and passed the Quit India resolution. According to this, the Congress decided to start a According to this, Congress decided to start a mass and large-scale struggle under the leadership of Gandhiji. On August 9th, 1942, Gandhiji and all the members were arrested even before the movement could start. Gandhiji arrest sent a wave of anger among the people, which led to strike demonstration. Police used lathi charge with
angered the public, and the movement took a violent turn. Quit India movement was not able to achieve the goal, but it left an impression on the mind of the British about the depth of nationalism feeling in Indian. क्विट इंडिया मूवमेंट, एज वी हैव रेड, की भी क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी ने लॉन्च करने का डिक्लेयर किया। जैसे ही डिक्लेयर किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। गांधी जी, नॉट ओनली द गांधी जी बट ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर, जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भी बहुत से इम्पोर्टेंट लीडर्स जितने भी थे, उन सबको गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया एक रात पहले ही। तो इससे क्या हुआ, उनको ये लगा कि अगर हम लोग मेन पॉलिटिशियंस को अगर अरेस्ट कर लेंगे तो ये मूवमेंट फेल हो जाएगा, लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो इजीली उनका काम हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट। लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए, लोगों में गुस्सा आया और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किए, स्ट्राइक्स की, बहुत कुछ किया। लेकिन गवर्नमेंट ने भी पुलिस के हाथों उन काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, लोगों को मारा, लाठी चार्ज की, बहुत ही बुरी तरह से लोगों को मारा पीटा गया, जो कि एक वायलेंट रूप में कन्वर्ट हो गया। अल्टीमेटली ये एक सक्सेसफुल तो नहीं कहा जा सकता कि भी क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, बट इससे ब्रिटिशर्स को एक चीज़ हो गई थी कि अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। नाउ वी हैव टू गिव अप इंडिया, एंड all the political power should be transferred to the government, to the इंडियन पॉलिटिशियंस। सो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में ये क्लियर हो गया हुआ था ब्रिटिशर्स को। मीनवाइल एक चीज़ और इंडिया में होने लग गई थी, दैट वाज इंडियन नेशनल आर्मी की भी बनाना शुरू कर दिया था, जिसका फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस, और इसका उन्होंने फाउंडेशन रखी थी सिंगापुर में। सो ये भी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी इंक्लूडेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर लिविंग इन साउथ ईस्ट एशिया। सुभाष चंद्र बोस reorganized this INA, calling the Azad Hind Force in Singapore in 1943. He also set up an Azad Hind government in Singapore and developed adopted the tricolor and slogan of Jai Hind. INA could not succeed against the troop of Alliance Southeast Asia. Japan was defeated in the war in 1944 and 1945, which affected the INA too. In spite of its failure, INA was able to motivate the Indian freedom fighters and create a fear among British. इंडियन पॉलिटिशियंस ने तो अपना काम किया। मीनवाइल इन आईएनए ने भी काफ़ी काम किया। आईएनए का चाहिए सिंगापुर से था, बट सुभाष चंद्र बोस को ने हेल्प ली थी, क्योंकि उनको दिख रहा था, सुभाष चंद्र बोस वेरी वेल अवेयर दैट द जर्मनी एंड जापान इज अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो ही हैज़ ज्वाइंड देयर हैंड्स, हिज हैंड विद द जर्मनी एंड जापान बिल्कुल सामने आके उसने, जापान ने इंडियन आर्मी, इंडियन आईएनए को पूरा हाथ दिया था। और जापान के ही तभी वो बर्मा जब पहुंचा था, तब ब्रिटिश को काफ़ी झटका लगा था कि आईएनए के कारण ही वो बर्मा तक जापान पहुंच पाया था। बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, ऐसा ही यहाँ कुछ हुआ। जापान पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम फेंका, जिसके कारण जापान ने गिव अप कर दिया था वॉर को। इस वॉर के गिव अप करने से क्या हुआ, जो हमें एक मिलिट्री स्ट्रेंथ जापान से मिल रही थी आईएनए को, वो ख़त्म हो गई। उसके दूसरी तरफ एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ ये हुआ जर्मनी भी हारनी शुरू हो गई थी यूरोप में। तो जो आईएनए को मेन जो पावर सप्लाई मिलती थी, इन दोनों कंट्री से मिलती थी, वो उनको मिलनी बंद हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि आईएनए धीरे धीरे ख़त्म हो गई। बट इसका इफ़ेक्ट ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा पड़ा। ब्रिटिशर्स पे से ज़्यादा इंडियंस पे रहा। उनको भी अपनी स्वाधीनता, अपनी
सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई कि भी हम भी कुछ, हम में भी कुछ दम है, हमें भी कुछ करके दिखाना है। तो ये आज़ाद हिंद फौज ने उनको करके उस ये दिया था, एग्जाम्पल पेश किया था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस, द शिमला कॉन्फ्रेंस was held on 1945 and launched, headed by the Lord Wavell. He wanted to give the Indian leader to representation in the council, except the post of the commander in chief, and Congress disagreed on this act. अगेन ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि भी वो किसी भी ढंग से इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दें, क्योंकि दे वांट, इट वाज अ बिग मार्केट फॉर देम, so they do not want to lose this colony, and by hook and crook they try their best to not to give up. But Indian Congress or Indian politicians were determined to get the freedom from the British government. This was the main incidents that happened during this period. In next lecture we are going to discuss about the cabinet missions and the other important events that happened near after 1945. Thank you very much. Have a nice day.